In previous lecture, we were discuss about stack applications, and in applications, we have discussed about recursion with some of examples like array element and binary search. है ना? These kind of examples we have taken, and we have a make understanding about recursion. Today's we will discuss it continue because of ये time limitation की वजह से complete नहीं कर पाए थे हम. तो today in recursion there is two main examples. These are the factorial and the towers of Hanoi. We will discuss about both calculate factorial and uh, manage the problem of towers of Hanoi. What we have the solution and what kind of steps we have to perform to solve the towers of Hanoi problem using recursion. So first of this, there will be some rules of recursion. These are in form of, we can say the base condition. It means we can say the proper condition that we should follow to execute the function, or we can say uh, call the function. है ना? There must be a base condition. Without base condition अगर हम रिकर्जन को करेंगे तो क्या होगा? हमारा फंक्शन इन्फिनिट टाइम्स कॉल हो जाएगा. ठीक है? And next one is the rule, that is the for each calling function variable should move towards base condition. यानी जो आपने बेस कंडीशन दी है, मेनली टर्मिनेशन कंडीशन भी बोलते हैं हम इसको, कि यहाँ पे हमें फंक्शन को टर्मिनेट करना है, यानी कॉलिंग को स्टॉप करना है ना? तो वहां पे उस वेरिएबल को यूज किया जाना जरूरी है जो आपने फंक्शन के अंदर यूज किया है ना? आपने देखा भी होगा पिछले, अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, you can see in this particular example there will be two variables a and n, and there will be the uh, variable for base condition, that will be a of 0. It means whenever the value of n is 0, then we should leave the we can say function calling, है ना? तो हम वहां से function calling को बंद कर देंगे, है ना? We should use these variable at the time of calling also. Okay, so these two rules are compulsory here to perform recursion function. One is the base condition and another is the variable that used in base condition must be used in calling condition, or we can say as a parameter. This is the code for a simple factorial function. There is a variable f and value of f is 1. Okay. And there is a loop that will be executed from n to 1 because of condition is I is greater than equal to 1. So start from the n and execute till 1. It means if the value of n equal to 4, then the loop execute 4 times. Okay. And what will happen here? F equal to 1 at the initial level, 1 equal to 1 multiply. What is the value of I in starting? That will be n. N is 4 in the starting. So that will be 4. What is the result? 4 multiply 1 equal to 4. So the next result equal to
नेक्स्ट रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा. देन इन नेक्स्ट f is 4 because of here in f already value updated in 4, multiply by I. What is the value of I after I minus minus? That will be 3. Okay. So value will be 3. Then what is the result? 3 multiplied by 4, 12. Okay. Then next one, I minus minus, then I की value हो जाएगी हमारे पास 2 multiply f की value हमारे पास क्या है 12. Okay. Then there will be in f 24. Okay. Next value of I will be 1. But 1 पे भी हमारी कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, बिकॉज ऑफ हमने इक्वल टू दे रखा है. तो यहाँ पे मेनली 24 मल्टीप्लाई बाय 1, रिजल्ट आपका 24 ही आएगा. तो दैट विल बी द सिंपल फैक्टोरियल मेथड. हाउ वी विल परफॉर्म इट इन recursion form, that is on next slide. There is the factorial. So if we talk about factorial, then we can say it is a just multiplication of 1 to n or n to 1. N is the number of that number we need to calculate factorial. Okay. So चाहे 1 से n मल्टीप्लाई कर लो और चाहे आप n से 1 मल्टीप्लाई कर लो. Okay, there is no problem. You can go with both. So हमने सिंपल फंक्शन के अंदर देखा हमने कैसे फैक्टोरियल कैलकुलेट किया. यहाँ पे हम यस क्या कुछ पूछना चाह रहे हो? अगर नहीं तो प्लीज अपना म्यूट रखें माइक. Okay. So what is the scenario of recursion function? If we need to perform in recursion form, then there will be some changes. What is the changes? सबसे पहले तो हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी किसके लिए? बेस कंडीशन, टर्मिनेशन के लिए. That will be the important. Okay. So here f equal to 1. हमने f इक्वल टू 1 सिंपल फंक्शन के अंदर भी लिया था. हम f इक्वल टू 1 क्यों लेते हैं? बिकॉज ऑफ अगर गार्बेज वैल्यू 0 हो गई तो मल्टीप्लाई करेंगे तो सब कुछ 0 हो जाएगा, है ना. दैट्स व्हाई वी नीड टू पुट वैल्यू at initialization 1 in the variable f, or we can say factorial. Factorial is called from the main function and given the एलिमेंट n, और वी कैन से वैल्यू ऑफ n, है ना. यहाँ पे भी हम इसकी वैल्यू क्या ले लेते हैं, n इज जस्ट 4. ओके. एंड f इक्वल टू 1 हो गया. व्हाट इज द कंडीशन? कंडीशन इज n डबल इक्वल टू 1 और n डबल इक्वल टू 0. ऑन द बोथ कंडीशन वी कैन क्लोज द फंक्शन. ओके. क्योंकि देखो 1 का कोई 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई वैल्यू में चेंज होने वाला नहीं है ना. आप 4 से लेकर 1 तक लूप चलाएंगे और लास्ट में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन द आउटपुट विल बी सेम. सो यू कैन मल्टीप्लाई 4, 3 and 2. That is the sufficient. So you can terminate it at the position of 0 or at the position of 1. That is the OR operator. दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू होगी, देन हम कंडीशन को क्या करेंगे, यहाँ पे टर्मिनेट करेंगे.
तो at the current scenario the value of n will be 4, है ना, यहाँ पे 4 है, so both conditions are false, ना तो n equal to 0 है ना n equal to 1 है. Then we should go with else condition. What is in else? F equal to n multiply factorial minus 1. ओके, मैं एक स्टैक बना लेता हूं. ओके, और इट विल बी द our calculation equation as well as calling function. Okay, then what is the f? At the first f is 1. Okay, so first equation will be, we can say n is 4 at the starting and multiply factorial of n minus 1. So we should go on the definition of the function. यहाँ पे हम कॉल करेंगे, बट यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई होगा? एट द इनिशियल व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल? दैट विल बी 1, है ना. सो इट विल बी 1. So the result will be 4 in the f, and we should return f whenever the function is not calling, but here the function is calling, so हम यहीं से वापस कहाँ चले जाएंगे? यहाँ पे चले जाएंगे. Okay, then what is the next? N minus 1, it means the value of n here is 3. So at second level, that will be 3 multiplied by 4. Because of the value of function will be 4 now. क्योंकि हमने पिछले कैलकुलेशन के अंदर वैल्यू 4 कैलकुलेट की थी, तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई? यहाँ पे 4 हो गई. That's why we get the result 12. सर Yes. सर आपने यहाँ पे स्टार्टिंग में जो इंट n की वैल्यू आपने 4 लिए, तो आपने मन से ली ना सर वो 4 वैल्यू कोई सी भी? 4 वैल्यू हमने एज्यूम किया, यहाँ पे फंक्शन को Assume कॉल किया किया है. ठीक है, यहाँ पे देखो ये इनपुट लिया गया ना, एंटर वैल्यू ऑफ n. यस सर, यस सर. तो यूजर यहाँ पे कुछ भी इनपुट कर सकता है. मैंने मेरे हिसाब से मैंने 4 इनपुट कर लिया, है ना. ओके सर. दैट इज रिटन बाय मेन फंक्शन, है ना. मेन फंक्शन के द्वारा एज ए आर्ग्यूमेंट इसको दिया गया है ना. ओके So whenever we call it to next time, the n minus 1 again happened and the value of n will be 2. And what is the value of function? That will be 12 according to previous calculation. That's why the calculation is 24. Okay, the value of function will be 24. Then now we should call again n minus 1. It means now the value of n will be 1. Okay, value of n will be 1. So the condition is true. So we have to return only 1. Okay, and then that 1 is also multiplied by 24. क्योंकि फंक्शन जो भी हमें देगा उसको हम n से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने इक्वेशन यही ले रखी है. So that will be 24, and now the function is not calling because of the termination condition is executed, and the final result is on top of the stack.
that will be written by the function and stored in the result. So here will be the calling of the function. हमने main function से call किया and it will be the called function. That will be recursion. Again here, example for factorial and some kind of things जो हमने अभी कैलकुलेशन किया था वही सारा कुछ है. स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे हम रिकर्सिव फंक्शन को समझ रहे हैं. देखो सबसे पहले जब आपने फंक्शन को कॉल किया था देन n की वैल्यू क्या थी? दैट विल बी 4. ओके, सो व्हाट इज द रिटर्न? 24. हाउ इट इज रिटर्न? once I am going in previous slide also. वो सर स्टैक के अंदर जो अपनी लास्ट वैल्यू होगी वही तो पहले सबसे पहले देगा अपने को. यस, यही समझाना चाह रहा हूँ. देखो हमने कैलकुलेशन यहां से स्टार्ट की. एक बार केवल आप इन वैल्यूज को देखें, ठीक है? ओनली दीज वैल्यूज आर इंपॉर्टेंट फॉर अस. ये तो मैंने f की वैल्यू दिखाई है इधर वाली, तो दीज आर नॉट मच इंपॉर्टेंट. सबसे पहले कैलकुलेशन हुई 4 मल्टीप्लाई 1, फिर 3 मल्टीप्लाई 4, फिर 2 मल्टीप्लाई 12, फिर 1 मल्टीप्लाई 24. अब स्टैक इधर से रीड करना स्टार्ट करेगा. सबसे पहले इसको रीड करेगा, देन इसको रीड करेगा, देन इसको रीड करेगा, देन इसको रीड करेगा, है ना? तो यही चीज यहाँ पे है. देखो सबसे पहले n की वैल्यू 4 थी, बट रिजल्ट रिटर्न वैल्यू क्या होगी? 24 होगी, क्योंकि कैलकुलेशन कंप्लीट होने के बाद ही फंक्शन रिटर्न करेगा और सबसे ऊपर वैल्यू जो है वो 24 है. सेकेंड कॉल ऑफ द मेथड, n की वैल्यू 3 रहेगी, फैक्टोरियल क्या रहेगा? 6. थर्ड कॉल क्या है? 2 एंड फैक्टोरियल क्या रहेगा? 2. लास्ट इज 1 एंड फैक्टोरियल इज 1. अब यहां पे रिकर्जन का फायदा एक्चुअली क्या हुआ कि आप चाहे किसी पे भी रिटर्न करवाओ उसका फैक्टोरियल आप देख सकते हो. ठीक है, हमने स्टार्ट यहां से किया था एग्जीक्यूशन. हम सबसे पहले यहां से यहां आए एंड केवल इन दो की बात हो रही है अभी, ओनली 2 स्टेटमेंट, है ना? हम यहां पे आए, फिर हम यहां से नेक्स्ट इटरेशन पे आए, फिर हम यहां से नेक्स्ट इटरेशन पे आए. अब हम यहां से वापस चलेंगे कहां पे? ऑन दिस साइड. ओके, that will be the first move after calculation complete. एंड यहां से 2 से हम यहां जाएंगे और फिर लास्ट में हम यहां मूव करेंगे. ठीक है, तो ये मेनली प्रोसेसिंग रहने वाली है. सो रिकर्जन का फायदा यहाँ पे ये होता है कि आप किसी भी लेवल पे फैक्टोरियल चेक कर सकते हो. अगर आप सिंपल फंक्शन लेते हो तो वो लास्ट की एक वैल्यू आपको रिटर्न करता है ना, जो भी फाइनल रिजल्ट आता है. अब यहाँ पे आप 3 पे भी अगर चेक करना चाहो ना स्टैक के अंदर, तो आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा कि 3 का एक्चुअली फैक्टोरियल क्या होगा? 6 होगा. 2 का फैक्टोरियल क्या होगा? 2 होगा. 4 का फैक्टोरियल क्या होगा? 24 होगा. सो जितनी बार कैलकुलेशन हुई, ऑल कैलकुलेशंस आर स्टोर्ड इन स्टैक मेमोरी. That will be the advantage of recursion. Find factorial of a given number. There will be the proper calculations. You can see this. सबसे पहले हमने फंक्शन को कॉल किया, okay, and the calculation will be performed like this, and these are the calculations, okay, और these are the result recursion, है ना? इससे अपने समझ सकते हैं. मैं ब्लैंक स्लाइड ले लेता हूं एक. ओके, यहाँ पे मैं आपको एक बार इसको वापस से रिवाइज कर देता हूं ताकि आप इसको थोड़ा सा ढंग से समझ पाए.
हमारा फंक्शन क्या था, ये था n मल्टीप्लाई f ले लेता हूं मैं सिर्फ फंक्शन नेम फैक्टोरियल n-1, ठीक है। ये हमारा मेनली फंक्शन था। तो व्हाट इज द बिगिनिंग ऑफ द फंक्शन, दैट विल बी 5, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई द वैल्यू ऑफ फंक्शन। देन जो भी वैल्यू आएगी वी शुड स्टार्ट विद n for -1, so you can put the value this factorial or 4. If you should take the value 5, उसमें हमने 4 लिया था, ठीक है, and then next one, ये तो दोनों आपके सेम रहेंगे, 5 तो अपनी जगह रहेगा। What is the factorial of 4? 4 multiply factorial of 3. Okay, and then what is the factorial of 3? 5, 4 multiply 3 multiply factorial of 2. Then what is the factorial of 2? 5 into 4 into 3 multiply 2 multiply 1. That is the way of calculation. And then we need to access from here. Okay. Factorial of given number. That is the just only calculations. Recursion and iterations, that will be we have to discuss, because of we need to differentiate both in simple iteration function or recursion function. If we talk about definition, then it will call itself and it is executed instructions repeatedly, because of यहाँ पे loop use किया जाता है ना, देखो सेकंड में लिखा हुआ है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, लूप यूज करते हैं। सिंपल फैक्टोरियल का प्रोग्राम आप बनाओगे तो आपको लूप यूज करना पड़ेगा, बट अगर आप वैसे फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाते हो रिकर्जन के थ्रू, तो आपको लूप की जरूरत नहीं है। यू हैव टू कॉल फंक्शन मल्टीपल टाइम्स, है ना। सो यहाँ पे ओनली फंक्शन रहेगा, लूप नहीं रहेगा। टर्मिनेशन, यहाँ पे आपको कुछ टर्मिनेशन कंडीशन देनी पड़ेगी फंक्शन कॉल के साथ, ठीक है, जिससे कि फंक्शन आपका कॉल ना हो। दैट विल बी द बेस कंडीशन और बेस केस। बट यहाँ पे टर्मिनेशन कंडीशन क्या होगी, हम लूप के अंदर कंडीशन देंगे, जैसे वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी हमारा लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा, इटरेशन टर्मिनेट हो जाएगी। यूजेज, जो कोड का साइज होता है उसको छोटा करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज नॉट ए इश्यू, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑब्वियसली लगभग सेम सी रहती है, ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता, बिकॉज ऑफ इटरेशंस में भी लूप जो है वो उन स्टेटमेंट्स को बार बार एग्जीक्यूट करता है, बट यहाँ पे थोड़ी सी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिकर्जन में बढ़ जाती है, बिकॉज ऑफ बेस कंडीशन को भी बार बार चेक किया जाता है। सो यहाँ पे बैलेंस रहती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कोड साइज स्मॉलर, इधर इटरेशंस के अंदर लार्जर रहेगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसमें हाई रहती है जनरली, बट इसके अंदर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिकर्जन के कंपैरिजन में लोअर रहती है ना। नॉर्मली वी कैन से लीनियर और पॉलिनोमियल, और वी कैन से दैट विल बी लॉगरिथम, इसके अंदर एक्सपोनेंशियली रहती है मोस्ट ऑफ टाइम। Recursion uses selection structure. What is the selection structure? And here repetition structure. It means we can say repetition structure means
we have to repeat some particular bundle of statements. But in recursion, there will be a statement that executed multiple times with selection of instructions. सिलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस का मतलब हम ये कह सकते हैं फंक्शन के अंदर, जैसे फैक्टोरियल के अंदर हमने मेनली किसको सबसे ज्यादा एग्जीक्यूट किया, n इंटू जो फैक्टोरियल फंक्शन था उसके अंदर n-1 यानी फंक्शन को कॉल किया हमने. तो दैट एक्सप्रेशन विल बी एग्जीक्यूटेड मल्टीपल टाइम. दैट विल बी द सिलेक्टेड इक्वेशन और वी कैन से एक्सप्रेशन एग्जीक्यूटेड मल्टीपल टाइम्स. स्पीड रिकर्जन की स्लोवर रहती है बिकॉज ऑफ ये पहले सारी कैलकुलेशन करता है, स्टैक के अंदर डालता है, फिर स्टैक से वैल्यूज को फेच करता है. दैट्स व्हाई द स्पीड इज स्लो देन द इटरेशंस, है ना. इटरेशंस की फास्ट रहती है एज कंपेयर्ड रिकर्जन. रिकर्जन यूजेज मेमोरी, मोर मेमोरी देन इटरेशंस बिकॉज ऑफ इसको सारे रिजल्ट्स एक साथ स्टोर करने होते हैं तो ऑब्वियसली मेमोरी चाहिए होती है. तो अगर हम इटरेशंस की और इसकी बात करें तो यहाँ पे वैसे इटरेशंस के एडवांटेजेस ज्यादा हैं, इसलिए हम इटरेशंस को ही हमेशा प्रेफरेंस देते हैं. रिकर्जन ओनली वहीं पे यूज किया जाता है जहां पे बहुत ज्यादा रिकर्जन की जरूरत होती है. वी कैन से जब हमें कुछ रिवर्स ऑर्डर के अंदर परफॉर्म करना होता है. सो वी हैव टू यूज रिकर्जन एट द सिलेक्टिव प्लेसेस, नॉट एवरीवेयर. बाकी कॉमनली हम किसको यूज करते हैं, इटरेशन को यूज करते हैं. लूप मेनली हम यूज करते हैं, है ना. इसलिए रिकर्जन जो है वो बहुत कम यूज किया जाता है. टावर्स ऑफ हैनोई, there will be some disk in a tower and सर एक क्वेश्चन रहता है yes, सर, रिवर्स ऑर्डर कैसे रिकर्जन का यूज, मतलब ये नहीं समझ में आया कि कैसे यूज कहाँ पे करते हैं. देखो रिवर्स ऑर्डर का मतलब हम सीधा सीधा ये समझ सकते हैं कि जब आप कुछ भी स्टैक की फॉर्म में लेना चाहते हो ना, जहां भी स्टैक की फॉर्म में ऑपरेशन करना चाहते हो, इट मींस वी कैन से ओनली द टर्म लास्ट इन फर्स्ट आउट, लिफो. ये बहुत सी जगह यूज होता है बेटा, लिफो. देखो कुछ टर्म्स ऐसी होती है, जैसे मैं सिंपल सा आपको रियल वर्ड एक एग्जांपल दे देता हूं. कहीं भी आप शादी फंक्शन में जाते हो तो आपको जो प्लेट्स रखी हुई मिलती है, तो क्या आप सबसे नीचे वाली प्लेट निकालते हो या सबसे ऊपर से उठाते हो? सबसे ऊपर से उठाते हैं, है ना. तो क्या सबसे पहले नीचे वाली प्लेट रखी गई थी या ऊपर वाली प्लेट रखी गई थी? सबसे पहले सबसे नीचे वाली रखी गई थी, बट फिर भी हम सबसे ऊपर वाली प्लेट उठाते. तो जरूरी नहीं कि लाइफ में हम हमेशा एक ही चीज को फॉलो करें. मेनली रूल क्या होता है, जो चीज सबसे पहले रखी गई है हम उसी को सबसे पहले यूज करें. हम घर में भी ऐसा ही करते हैं. जो सामान सबसे पहले आता है उसको हम पहले यूज करते हैं कि ये खराब हो जाएगा, हम यूज नहीं करेंगे. तो जो नया आया उसको हम बाद में यूज करेंगे. तो मेनली हमें क्या आदत पड़ी हुई है, किसकी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की. जो चीज सबसे पहले आई उसका इस्तेमाल हम सबसे पहले करते हैं. ठीक है, हमें इसी की हैबिट है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की. इसलिए हम इसको थोड़ा सा क्या है कि जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते हैं. और ये इसलिए भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता है क्योंकि ये बहुत रेयरली यूज किया जाता है. तो ये जस्ट एक सिनेरियो है जिसको कुछ एप्लीकेशंस के साथ यूज किया जाता है. तो जहां पे इसको यूज किया जाता है, अगर उस टाइप की कुछ प्रॉब्लम आप अपने प्रोग्रामिंग से सोल्व कर रहे हो, देन यू हैव टू यूज रिकर्जन. अब जैसे ये प्रॉब्लम आपके सामने टावर्स ऑफ हैनोई, तो क्या आप डायरेक्टली इस ऑर्डर को, ये सेम जो ऑर्डर है, सबसे लार्ज डिस्क देन स्मॉल एंड ये स्मॉलेस्ट, इसको डायरेक्ट आप यहां पे डाल सकते हो इसके अंदर, इस टावर के अंदर? कभी नहीं डाल सकते.
यू हैव टू फॉलो रिकर्जन हियर. आपको यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर फॉलो करना ही पड़ेगा. So we need to shift these in same order in tower C. So what we have done, सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट डिस्क को C के अंदर ट्रांसफर करेंगे. The disk transfer in C. Okay. And the next disk transfer to B. ओके. तो अब ये वाली डिस्क यहां पे आ जाएगी, जो लार्जेस्ट डिस्क आपकी है, सेकंड लार्जेस्ट जो है वो आपकी यहां आ गई. ठीक है. और जो स्मॉलेस्ट थी वो सी में चली गई. बट अब जो स्मॉलेस्ट थी वो इसके ऊपर आप डाल सकते हो. ध्यान रखना ऑर्डर यही होना चाहिए, कभी भी स्मॉलेस्ट डिस्क पे लार्जेस्ट डिस्क नहीं आ सकती. सो सेकंड डिस्क विल बी हियर. हमने ऊपर की दोनों डिस्क जो है वो बी के अंदर ट्रांसफर कर दी. हाउ मेनी मूव्स हियर वी हैव डन? 3 moves, है ना? That will be the first, second and third. There will be 3 moves. और 3 moves के अंदर हमारे पास ये सिनेरियो आ गया. इसमें सबसे लार्जेस्ट है और बाकी 2 इसमें आ गई. मैं इनके नंबर्स दे देता हूं 1 2 and 3. तो नाउ यहाँ पे 1 और 2 आ गई है. यहाँ पे अब ओनली 1 बची है. सॉरी 2 और 3 आ गई. 2 और 3. ओके. यहाँ पे ओनली 1 बची है. अब इस 1 को हमें कहां पे ट्रांसफर करना है? सी के अंदर अभी कुछ भी नहीं है. सो वी नीड टू ट्रांसफर इट इन सी. 1 number. That will be the we can say the process fourth. It will be the fourth move. Then what is next? अब आपका टावर ए जो है वो पूरी तरीके से खाली हो चुका है. So you can transfer this third disk again in the tower A. That will be the fifth move. यहाँ पे अब ओनली 2 बचा है और यहाँ पे ओनली 3 बचा है ना? ये तो जा चुके हैं. ठीक है. तो ओनली 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है. अब आप 2 को किस में ट्रांसफर कर दो? 2 को इसके ऊपर ट्रांसफर कर दो, है ना? So that will be the scenario of tower C. And now you can transfer that A into C. 3 number disk at the C. So that will be the scenario of tower C. Now what is the total movements? It will be the 6 and last one is the 7. So minimum 7 movements are there to transfer 3 disks. Okay. Okay, that will be the simple information about towers of Hanoi. कि mainly जो rules हैं वो क्या होंगे? Only one disk can be moved, है ना? एक बार में आप एक ही disk को move कर सकते हो. ठीक है. और you can remove from only top. डायरेक्टली आप नीचे की डिस्क को एक्सेस नहीं कर सकते. जो सबसे ऊपर होगी उसी को आप रिमूव कर सकते हो. एंड देन नेक्स्ट वन इज द लार्जेस्ट डिस्क जो है वो स्मॉलेस्ट डिस्क के ऊपर नहीं रह सकती.
I already discussed with you. So these are the moves we already perform. Okay, there is a one disk. You can transfer directly in this tower C. There is only one move required. अगर एक डिस्क है तो आपको एक मूव चाहिए ओनली, है ना? टोटल स्टेप्स 1. अगर आपके पास दो डिस्क है, then you have to transfer first it in tower B and transfer it in tower C and then transfer it in tower B into C. B into C. Okay, so there will be total 3 steps, 3 steps. है ना? तो 2 के लिए देखो, ये सबसे पहले A से हमने B में डाला, फिर A वाली डिस्क को C में ट्रांसफर किया, A to C, then B to C. Okay, that will be the scenario. Okay, so total steps are 3. Okay, ध्यान रखना, जब n की वैल्यू हमारे पास 1 थी तो टोटल स्टेप्स कितने थे? 1. n की वैल्यू अगर हमारे पास 2 हुई तो टोटल स्टेप्स क्या है? 3. 3. ओके, नाउ वी विल मूव ऑन. और अपने 3 का भी तो कैलकुलेट कर चुके हैं. 7. 7. Yes, add the 3, 7. So that will be the for 3, and you can see this. First A to C, then A to B, है ना? तीनों में एक एक हो गई है डिस्क. Then we need to move it back on this disk. Okay, then we need to move it on C tower. Okay, so ये C में आ गई. Then we need to move it on A at next, and it will be in this. Okay, or finally it will be in C. So there will be total 7 steps. So we can say total step will be 7, और यहाँ पे steps मेंशन किए गए, क्या क्या steps हमने follow किए. Then what is the formula we can derive from these number of disks? अगर आपको ये कहा जाए कि अगर एक टावर के अंदर 10 डिस्क हो तो कितने मूव्स आपको करने पड़ेंगे? टावर्स हमेशा बिगनिंग टावर रहेगा, ओके सर. एंडिंग टावर रहेगा, और ये आपके पास ऑक्सिलरी रहेगा जिसको आप टेम्परेरीली यूज करोगे. ऑलवेज 3 टावर्स हियर. अगर आप 4 है तो अपने पास रिजल्ट क्या आ जाएगा? 2 की पावर 4 minus 1. It means we can say 15. Okay, there will be 15 moves. Okay, Yes sir. so you can calculate it by the formula, because of whenever you attempt the exam of GATE or any type of exam that related to computer science, you can see the question of towers of Hanoi. है ना? नंबर ऑफ डिस्क आपको दे दी जाएंगे और आपको स्टेप्स कैलकुलेट करने होते हैं वहां पे. सो यू शुड रिमेंबर दिस फॉर्मूला. It will be the algorithm that will be, we can say these are only simple steps, not full algorithm. So there will be 3 disks with name, beginning, end, or we can say auxiliary. Okay, that will be used only for helping to moves, है ना? Move disk को move करने में help करेगा only. It is not the part of beginning or not the part of result. Okay, then what is the solution of towers of Hanoi? That will be
n is always greater than 1. ओके देखो 1 डिस्क होगी तो that will be directly transferred to any tower. So we have taken always more than 1. n की वैल्यू जो है वो 2 या 2 से ज्यादा होनी चाहिए. ठीक है.